Welcome, students. Hope you all are fine and happy right now. Now, we are going to study the part number 9 of lesson 8, that is weather and climate and the adaptation in the animal. Today, we are going to cover the animals that are found in the rainforest, tropical rainforest. In our last class, we have studied about the different layers of a tropical rainforest. Tropical rainforest is the densest forest where lots of animals are found. Now we are going to see the adaptation in some animals. In this part we are going to study about the adaptation in lion-tailed macaw. The figure is already given in the book. You have to read the book also. And the second number is red-eyed tree frog. Third number is toucan. So in today's class we are going to cover the adaptation in 3 different animals. Let's start. The lion-tailed macaw. Macaw, a kind of animal which has a long lion-like tail. It spends most of the time on the branches of the tree. Means ये लोग पेड़ के टहनियों में रहते हैं. Adapt to grasp the branches with their legs and the long muscular tail. वो अपने पैरों के माध्यम से ब्रांचेस को पकड़ के लटक सकते हैं और बॉडी को बैलेंस करने के लिए पूंछों का भी सहारा लेते हैं. So the lion-tailed macaw mostly found on the tree. They are arboreal in nature. Arboreal means पेड़ पे पाए जाने वाला जानवर जो अपना ज्यादातर समय पेड़ पे बिताता हो. उसके लिए उसके पास क्या क्या एडेप्टेशन है. पहला, उनके जो पंजे हैं वो पेड़ के टहनियों को आसानी से पकड़ के होल्ड कर सकते हैं. ये उनमें सबसे पहला एडेप्टेशन. और दूसरा, वो गिर ना जाए इसलिए वो अपने पूंछों को भी यूटिलाइज करते हैं. पेड़ के ब्रांचेस को लपेट लेते हैं और उससे लटक भी जाते हैं और अपने बॉडी को भी बैलेंस कर सकते हैं. सो यू हैव सीन द 2 मेन फीचर्स ऑफ लायन टेल मकाओ. एंड this kind of animal which live or which spend most of its time in the tree, they are called arboreal animals. ये क्वेश्चन आ सकता है, what do you mean by arboreal animals? तो those animal which live mostly in the tree are called arboreal animals. ठीक है. अब कोई ऑर्गेनिज्म यदि पेड़ पे रहेगा तो क्या खाएगा? If some organism live on the tree, what will they eat? They will eat fruits, seed, flower, leaves and some insects. So mostly they are omnivorous. They mostly eat fruit, seed, flower, leaves and sometimes they also eat the insect. Hope you understand these 2 topics. So it is a very simple adaptation that you can see in lion-tailed macaw. Figure is already given in the book, that's why I have not given over here. Next we are going to study the adaptation in red-eyed frog. Frog means मेढक. अब उस फ्रॉग की आंखें यदि रेड हों और उस रेड कलर के आंखों से यदि कोई दूसरा जानवर या कोई दूसरा इंसेक्ट डर जाए तो उसे क्या कहेंगे? रेड आइड ट्री फ्रॉग. सबसे बड़ी बात कि ये ट्री पे रहते हैं. लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. और फॉरेस्ट में रहने वाले जानवरों के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं. उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं. सो द रेड आइड फ्रॉग, ट्री फ्रॉग lives on the tree top. पेड़ों के टहनियों पर, पेड़ों के ऊपर रहते हैं. and branches and some adaptations showed by red-eyed tree frogs are क्या क्या adaptation है? They are bright green body.
बॉडी उनका ग्रीन है, ब्राइट कलर्ड है, उस पर ब्लैक के स्पॉट्स या येलो के स्ट्रिप्स आपको मिलेंगे, येलो कलर का स्ट्रिप्स मतलब दाग, ऐसा 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 स्ट्रिप्स. So they have a bright green body with pale yellow strips which help in the camouflage. Camouflage मतलब वो उनको छिपने में मदद करता है. पेड़ों के भी पत्ते भी ग्रीन हैं और उनका बॉडी भी ग्रीन है. तो कोई यदि मान लो दूसरा जानवर आया तो ग्रीन ग्रीन तो मिल जाएगा, तो उसको तो पहचान नहीं पाएंगे. तो camouflage का मतलब होता है change the body color according to the environment so that other organism cannot identify एंड दे कैन बी प्रोटेक्ट फ्रॉम एनिमीज. मतलब एक जानवर अपने शरीर के इन्वायरमेंट से, अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने शरीर के कलर को चेंज कर लेता है ताकि उनके एनिमी उनको पहचान ना सके, उनको खा ना सके, उनसे वो बच सके. ऐसे ऑर्गेनिज्म को, ऐसे चेंजेस को हम लोग कैमोफ्लेज बोलते हैं. ये बहुत बड़ा एडाप्टेशन है. जैसे कि चैमेलियन में आप लोग देखते हो, चैमेलियन में क्या होता है, वो भी अपने शरीर का कलर जो है अकॉर्डिंग टू नेचर, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट चेंज कर लेता है ताकि जो बर्ड्स वगैरह हैं जो उनको खाते हैं वो उनको पहचान ना पाए. होप यू अंडरस्टूड द थिंग्स. नेक्स्ट, दे इट फीट हैज सक्शन कप्स. इसके पैरों के अंदर में एक होल है, गैप है, जो सक्शन की तरह काम करता है, चिपक जाता है. कहीं पर भी जंप लगाएंगे तो गिरेंगे नहीं, चिपक जाएगा. किससे? अपने हाथों को चिपका देंगे, सक्शन, ऐसे चुप. तो वैसे कहीं पे भी बैठेंगे तो चिपक जाएगा, वो गिरेंगे नहीं. सो देयर फीट हैव सक्शन कप ऑन द टोज दैट स्टिक ऑन द ट्री एंड दे हैज पावरफुल लेग्स. उनके जो पैर हैं वो बहुत मजबूत हैं. इसके माध्यम से वो पेड़ों के ऊपर में काफी देर तक बैठ के रह सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं. नेक्स्ट जो टॉपिक है, देयर आईज आर रेड एंड ब्लजिंग. उसकी जो आंखें हैं वो खतरनाक दिखती हैं और बाहर की तरफ निकली हुई, और बाहर की तरफ निकले होने के कारण दूसरे जानवर डर जाते हैं, अरे बाप रे ये क्या है. सो दिस स्केयर अवे द पोटेंशियल प्रेडेटर. मतलब जो प्रेडेटर, जो भी शिकारी शिकार करने के लिए इनका आते हैं, वो उनकी आंखों को देख के डर जाते हैं और भाग जाते हैं. इनकी आंखें बहुत ही ज़्यादा ब्राइट रेड कलर की होती है और बाहर की तरफ निकली होती हैं, जो दूसरे जानवरों को डरा देती है. इट इज़ अ नॉक्चुरल एनिमल. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट. द फ्रॉग आर नॉक्चुरल मीन्स दे आर मोस्टली फाउंड इन और they are mostly active at night. They do not show the activity mainly in the day. दिन के समय ये एक्टिविटी नहीं दिखाते, ये सोते हैं, और रात के समय ये जागते हैं, और रात के समय जो कीड़े मकोड़े निकलते हैं उनको ये खाते हैं. तो ये तो हम लोगों ने 5 एडेप्टेशन देखा, 5 चेंजिंग देखा जो रेड आइड ट्री फ्रॉग ने अपने आप को बदला था, अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से, अपने बॉडी को, और भी बहुत सारे चेंजिंग लाए ताकि वो उस इन्वायरमेंट में एडप्ट कर सके और उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो और वो आराम से जी सके उस इन्वायरमेंट में, पेड़ के माहौल में. आप लोगों ने पेड़ पे चढ़ने वाले फ्रॉग के बारे में सुना ही नहीं होगा. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट toucan. Toucan is a kind of animal which are lives on the upper layer of the tree. पेड़ के सबसे ऊपर. देखो फिगर दिया हुआ आप लोगों के बुक में, ऐसा तो आप लोग toucan देखे ही होंगे, नहीं देखे हो, इस तरह का बर्ड है ऑब्वियसली. इट फीड ऑन द स्मॉल बर्ड्स. छोटे छोटे बर्ड्स को पकड़ के खाता है, और लिजर्ड्स या लिजर्ड को पकड़ के खाता है. एंड दे हैव ए स्ट्रॉन्ग एंड शार्प बीक. उसके चोंच जो होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं ताकि वो आसानी से कीड़े को पकड़ के खा सके, फ्रॉक्स को पकड़ के खा सके, लिजर्ड्स को पकड़ के खा सके, दूसरे एनिमल्स को पकड़ के खा सके. एंड दे हैव ए नैरो टंग. टंग मीन्स जीभ. जीभ जो है उनका नैरो है, छोटा सा है, जिससे वो पकड़ के खाते हैं. होप ये क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा.
आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी. If you have any kind of problem regarding understanding the part, you can ask me. Although lots of figure has been given in the book, that's why I have not given over here. Just read the each and every line of the book. It is also important because most of the question will be asked from the book, and at the end of this lesson you have to do the question answers of the book also, because in last lesson which we have completed, we didn't do the question answer of that chapter also. So after this completion of this chapter, after completing this chapter, we will focus on doing the question answer of last chapter and this chapter both. Understood? So be prepared yourself, read the each and every line of the book. It will very important for you, because the question will be asked from the book also. And if you have any kind of problem regarding understanding, you can ask me or you can WhatsApp me personally. Hope for your better learning, and stay at home, don't go out, and be safe. Okay, bye bye.